Okay, welcome back to the next session. We have discussed about the importance and fundamental concepts of pleading, the various necessary inputs which are to be there in a pleading. Now, as previously I discussed that completion of order 6 will now give a opening door for order 5. So now we will discuss with order 5, and it is all about summons. It is all about summons. It is all about summons. Now summons in the substantive part, that is in section 27 to 29 is dealing with summons under the civil procedure code, and in the order part, order 5 is the procedural part, to whom the summon has to be delivered, what is the importance of summon, how a case of the plaintiff can be intimated to the defendant, what is the procedure of delivering summon, who is a process server or who is a postal courier officer. All things are relevant with this chapter, because with the initiation of a civil case, just merely filing of a plaint is not enough. Filing of a plaint together with issuance of summons gives an intimation to the defendant, which brings the defendant before the court, So filing the plaint is not only enough. Plaint फाइल करने का बाद कोर्ट को लगता है ये मैटर प्राइमा फेसी ठीक ठाक है, तो कोर्ट उसके साथ साथ समन्स भी इशू करता है डिफेंडेंट को बुलाने के लिए. सो व्हाट इज एक्चुअली समन मीनिंग पहले देखो. व्हाट इज अ समन? देखो, व्हेन द प्लेंटिफ फाइल्स अ सूट, द डिफेंडेंट हैज टू बी इन्फॉर्म्ड. डिफेंडेंट को पता होना चाहिए उसके अगेंस्ट में कौन मामला किया, that the suit has been filed against him. So when the plaintiff files a suit, the defendant has to be informed. Otherwise information नहीं दोगे तो defendant कैसे आएगा, उसको कैसे मालूम होगा क्या उसके अगेंस्ट में कोर्ट ने कोई केस दर्ज किया है. So he is required to appear in the court to defend it. So plaintiff प्लेट में जो allegations दे रहा है, that has to be informed and intimated to the defendant by means of a summon. Now summons is issued by the court. Summon हम लोग issue नहीं कर सकता, ठीक है. It is not within the control of or in the purview of the parties. Parties files a suit before the court. Parties files a plaint before the court. But the issuance of summon is totally under the discretion and control of the civil court. In criminal cases also, if you refer CRPC section 60 से आप देखोगे 61, 62, 63 all is dealing with summons and warrant. तो same relevance, same type of nature, character is also there in criminal procedure code with due regard to summon. तो when the plaintiff files a suit, the defendant, तो जब एक plaintiff कोर्ट के सामने आया with a civil matter, court issues summon, and that summon has to be delivered, to the defendant. Otherwise, how can the defendant acknowledge that a case has been filed against him? So the defendant will be able to take defense when he receives the summon along with the plaint. तो summons तो खाली इशू नहीं होते, summons के साथ साथ plaintiff ने जो plaint फाइल किया है, plaint लॉन्च किया है बिफोर द कोर्ट, उसके साथ साथ summons का कॉपी प्लस plaint का कॉपी प्लस उसके साथ एक एक्नॉलेजमेंट ड्यू एडी कार्ड, जो हम लोग और भी अच्छे तरीके बोलते हैं RPAD, रजिस्टर्ड पोर्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, तीनों एक साथ जाता है डिफेंडेंट को सर्व करने के लिए. अभी कौन सर्व करता है, कैसे सर्व करते हैं, विल कम टू वेरियस
rules, specific rules which has been mentioned under order 5. So the concrete definition of summon is when the plaintiff files a suit, the defendant has to be informed and that the suit has been filed against him and that is required to appear before the court. So the intimation which is sent to the defendant that a civil matter has been lodged against him is a summon, nothing more than that. Now what is object of issuing summon? तो इसका ऑर्डर 5 का तो एक ऑब्जेक्ट होता है. सो व्हेन आई एम सेइंग अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्डर 5, देन ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ इशूइंग समन. सी व्हेन अ सूट इज फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ, द डिफेंडेंट, व्हेन अ प्लेंटिफ इज, देखो प्लेंट तो प्लेंटिफ फाइल करता है और प्लेंट में एक्चुअली क्या रहता है, एक एलिगेशंस रहता है, एक मैटर को लेके डिस्प्यूट रहता है, किसके साथ हुआ है, डिफेंडेंट के साथ हुआ है और कोर्ट में वो क्लेम कर रहा है रिलीफ, किसके अगेंस्ट में, डिफेंडेंट के अगेंस्ट में रिलीफ. तो कौन सा रिलीफ, क्या कॉज ऑफ एक्शन, ये सब कुछ तो डिफेंडेंट को भी एक बार हक है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए. व्हाट इज द एक्चुअल डिस्प्यूट, तो उसको प्रॉपर कॉपी सर्व नहीं होता है तो डिफेंडेंट विल नॉट बी एबल टू मीट द केस, डिफेंडेंट विल नॉट बी एबल टू litigate the matter against the defendant, against the plaintiff, whether whatever statement has been given by the plaintiff is true and false, that has to be litigated by the defendant. So when a suit is filed by the plaintiff against the defendant and a relief is claimed, the defendant must be given an opportunity as to what he has to say against the prayer made by the plaintiff. Plaintiff तो prayer कर रहा है कोर्ट से कि मुझे ये रिलीफ दे दो, बट सही में वो रिलीफ उसको देना चाहिए कि नहीं वो तो कोर्ट का डिस्कशन है, बट वो उस मैटर को लेके उस क्लेम के अगेंस्ट में लिटिगेट करना है डिफेंडेंट को. सो विदाउट द इशुएंस ऑफ समन द डिफेंडेंट विल नॉट बी एबल टू गेट एंड प्रॉपर, डिफेंडेंट विल नॉट बी एबल टू गेट अ प्रॉपर इंटीमेशन. तो इंटीमेशन उसको चाहिए ही चाहिए. सो this is in actual consonance of the principles of natural justice. Now what is principles of natural justice? We know there are two principles, odi alteram partem, we have heard, and also nemo debet esse judex properia causa. ये दोनों लीगल मैक्सिम है. ऑडी ऑल्टरम पार्टेम का मतलब यही है कि कोर्ट कभी एक तरफ सुन के कभी भी जस्टिस दे सकता है. कोर्ट शुड give reasonable opportunity to both the sides before passing an order. Decree तो दूर का बात है. Odi alteram partem. So this is a legal maxim which you have studied in your administrative law. This means that no one should be condemned, no one should be remain unheard, no judgment or order or decree should be passed against a party in absentia, in absence of that party. तो कोर्ट को विचार करना है तो दो साइड से मैटर को देख के विचार करके जस्टिस देना है. एंड इट इज फॉर दिस रीजन समन इज बेसिकली अ नोटिस गिवन टू द डिफेंडेंट that try to defend the matter, the plaintiff is making allegation against you before this proper court, you please come and defend your case. और कुछ नहीं. तो अभी मान लो समन्स नहीं दिया है डिफेंडेंट को, प्रॉपरली समन्स सर्व नहीं किया डिफेंडेंट को और कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया. सपोज टेक एन एग्जांपल, वेदर द लीगलिटी और द वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर कैन बी चैलेंज. द आंसर इज yes, that can be challenged because the order is passed against the principles of natural justice. Principles of natural यही कहलाता है क्या, अदर साइड को सुन के तब विचार करो, जस्टिस तभी दो. So what are the essentials of summon? It is given in rule 1 and 2. Order 5 rule 1 and 2 is talking about essentials of summon. Now every summon shall be signed by the judge. Who is a judge? Judge is actually a court officer. Judge is actually a public servant. So summons कौन सर्व कर रहा है? It is the judge और such officer is appointed by him. अभी देखो जज का तो साइन रहता है सब समझ में, समझ तो पहले से रेडी होता है, खाली किसको भेज रहा है समन वो कोर्ट का क्लर्क का काम है. कोर्ट का जो होता है ना प्रेसकार और क्लर्क, तो वो जो क्लर्कशिप का एग्जाम देता है कोर्ट के लिए, तो वो सब कुछ रेडी करता है, खाली जज साइन करता है, उसका यही काम है. Because the judicial officer is endorsing that summon and that is a belief that the summon is a document, is a authentic document which is issued by the court and it is having a sanction. It is having a sanction और उसके साथ साथ एक प्लेन का कॉपी भी जाना चाहिए. तो
फर्स्ट शेड्यूल में अपेंडिक्स मी में आप सीपीसी में देखोगे, फर्स्ट शेड्यूल में अपेंडिक्स मी, फर्स्ट शेड्यूल और अपेंडिक्स बी, उसमें समन कैसे होते आप देख सकते हो. सो ऑर्डर 5 रूल 1 इज स्ट्रिक्टली सेइंग दैट समन शुड बी सर्व टू द डिफेंडेंट और डिफेंडेंट्स, एक से ज्यादा डिफेंडेंट होगा तो आप सर्व कर सकते हो. बट सब डिफेंडेंट्स को, मान लो ए वर्सेस बी सी डी ई, ए हैज फाइल्ड अ प्लेंट बिफोर द कोर्ट एंड द कोर्ट हैज इशूड समन, तो समन शैल बी सर्व टू ईच एंड एवरी डिफेंडेंट्स रेस्पेक्टिवली, अलग अलग से सामन जाएगा. और ये खर्चा कौन करेगा, क्योंकि प्लेंटिफ ने मामला किया है तो ये प्लेंटिफ का ही खर्चा होना चाहिए. अभी समन्स कैन गो इन वेरियस वे, पर्सनल सर्विस भी हो सकता है, थ्रू कोर्ट सर्विस भी हो सकता है, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट कोरियर सर्विस भी हो सकता है. इट डिपेंड्स. नाउ व्हाट डज रूल 3 मीन्स ऑफ ऑर्डर 5. 2 मिनट दो, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं. So order 5 rule 3 is talking about appearance in person. Now rule 3 of order 5 is stating about appearance in person. अभी डिफेंडेंट को जब सर्व कर रहे हो समन, ऑब्वियसली द डिफेंडेंट शुड अपीयर इन पर्सन. बट हकीकत में क्या होता है, डिफेंडेंट जब भी एक समन्स को रिसीव करते हैं, उसके साथ साथ व्हाट हैपेंस, उसके साथ साथ डिफेंडेंट तुरंत चला जाता है किसी एडवोकेट के पास और बोलते हैं ये मैंने क्या रिसीव किया मुझे पता नहीं है. सो दैट समन्स इज एक्चुअली रिसीव बाय द डिफेंडेंट. मान लो डिफेंडेंट ने रिसीव किया है, डिफेंडेंट रियलिटी में वो चला जाते हैं एडवोकेट के पास, WS फाइल करना होता है, इट्स मैंडेटरी, लॉ ने बोला. बट उसका भी एक्सेप्शन से कभी कभी जानबूझ के लेट नहीं होता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है घर में कोई मर जाता है मान लो, नहीं तो उसको समन्स नहीं मिला है एंड इट वाज अ बोनाफाइड रीजन, फॉर अ बोनाफाइड रीजन, तो इसके लिए कभी कभी एग्जेम्पशंस भी देता है कोर्ट, टाइम एनलार्ज भी करता है. एनलार्जमेंट ऑफ टाइम इज गिवन इन सेक्शन 148. याद रखना, कभी भी कुछ केस में मैटर में मान लो समन्स पहुंचा नहीं है, टाइम बढ़ा दिया, मान लो डिफेंडेंट बोला मेरे पास पैसा नहीं है, हाउ टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट, हाउ टू हायर एन एडवोकेट, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो कोर्ट थोड़ा टाइम एनलार्ज भी करता है, टाइम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं उन लोग के लिए, बिकॉज सबके पास सब कुछ ऑलरेडी, सबके पास सब कुछ नहीं रहता है. सो इट टेक्स टाइम. सो द कोर्ट ऑलवेज इन द प्रिंसिपल्स ऑफ good and reasonable thinking gives sufficient time to the defendant to enable him to appear and answer the claim of the plaintiff. plaintiff का जो claim है वो तो defendant को ultimately claim के साथ defense भी plaintiff को लेना पड़ेगा, because whatever claim has been stated by the plaintiff that has to be specifically defended by the denied or defended by the defendant. तो sufficient time होना चाहिए, क्योंकि WS को फाइल करना भी है, WS को लिखना भी है. The summons should also contain an order to the defendant to produce all the documents. कभी कभी ऐसा भी समन्स हो सकता है जो डॉक्यूमेंट्स डिफेंडेंट का पास है, नहीं तो मान लो प्लेंटिफ का पास है, प्लेंटिफ का कोई मान लो एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है, 5 प्लेंटिफ है, मान लो 3 नंबर जो प्लेंटिफ है उसके पास सब डॉक्यूमेंट्स है, बट कोर्ट के सामने वो ले आना नहीं चाहता है, बट वो डिफेंडेंट को मालूम है क्या वो 3 नंबर प्लेंटिफ के पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है. सो देयर ही कैन मेक एन एप्लीकेशन summoning for the production of documents. So summons खाली ये नहीं है only to appear in person. Summons can also be given for what? Production of any documents also. Production of documents which are with the parties. Documents which are the parties. So production of documents भी हो सकता है और copies. Production of copies. So summons issued to the parties, summons issued to the witness, summons issued to any of the parties for producing any documents or copies or any other relevant extracts जो जिसके पास है. Now coming to the various modes of service of summons, that's important. Modes of service of summons. 2 मिनट मुझे दो, थोड़ा
इसको इरेज करने दो। चलो हो गया, जल्दी जल्दी हो गया। मोड्स, सॉरी ये कलर ठीक नहीं जाता है। ओके, मोड्स write down modes of service of summon. This is very important both for judicial also and also for law exams. देखो मोड्स का फर्स्ट होता है पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस। पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस। 2 नंबर पॉइंट आता है सर्विस बाय कोर्ट। कोर्ट भी खुद सर्विस कर सकता है, सर्विस बाय कोर्ट। नेक्स्ट आता है सर्विस बाय प्लेंटिफ, खुद प्लेंटिफ कर सकता है। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, दैट इज इंपॉर्टेंट, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। देखो रूल 10 to 16 18, रूल 10 to 16 18, दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल डायरेक्ट सर्विस। सर्विस बाय कोर्ट को बोल दिया, रूल 9 में दिया है। नेक्स्ट सर्विस बाय प्लेंटिफ इज अबाउट रूल 9A एंड रूल 17 19 to 20 is talking about what? Last but not the least, substituted service. Now what is personal or direct service? देखो rule 10 to 16 पढ़ो and 18 पढ़ो which deals with personal or direct service. This is basically an ordinary mode. Personal एकदम ordinary mode होता है, ordinary mode of service of someone. Whether if it is practicable, whether if it is feasible or practicable that someone can be served to the defendant or to his authorized agent directly, तो directly भी दे सकते हो summons. Whether the defendant is absent, now ये भी हो सकता है defendant residence से बाहर है, किसको दोगे? घर में मान लो कोई adult member है, उसके भी हाथ में दे सकते हो and that will be considered to be a good service. तो पहला पॉइंट बोला wherever it is practicable the summons may be served to the defendant in person or to his authorized agent, direct service. Where the defendant is absent from his residence, where the service of summon cannot be made because there is no likelihood of such person, रहता है क्या नहीं रहता है कोई खोज खबर नहीं है, and ये भी जानकारी आया within a reasonable time, तो उसका घर में कोई एडल्ट मेल नहीं तो कोई फीमेल रहेगा तो उसके हाथ में भी समन्स आप सर्व करोगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड दैट इट हैज बीन डीम्ड, सोच लेगा कोर्ट, सर्विस हैज बीन डन। नाउ इन अ सूट व्हिच इज रिलेटेड टू बिजनेस और वर्क, business or work, suits for business, suits for any other purposes relating to business, that suit can be served to the manager, sorry, that summons can be served to the manager or the agent carrying on such business. मान लो मेरा एक दुकान है, उस दुकान का नाम है पीसी चंद्र ज्वेलर्स, नाम तो सुना है आप लोग, और मेरा दुकान का जो फ्रेंचाइजी कलकत्ता में सब जगह है, पर्टिकुलर कोई एक फ्रेंचाइजी के साथ किसी का एक केस हो गया, मान लो अ सूट हैज बीन फाइल्ड बाय अ प्लेंटिफ अगेंस्ट पीसी चंद्र डिफेंडेंट ऑफ दुर्गापुर, पीसी चंद्र ऑफ दुर्गापुर, तो मान लो एक्चुअल डिफेंडेंट इज नाउ नॉट इन दुर्गापुर, बट द समन कैन बी सर्व्ड to the authorized agent who is sitting in PC Chandra Jewellers office or the manager of that person. तो ये हो जाता है आपका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का कहानी. If they are not residing within the territorial jurisdiction, service to the manager or agent carrying the business of the defendant, डिफेंडेंट का बिहेव में कोई मैनेजर कोई एजेंट डेप्यूट हुआ, वो बिजनेस कैरी कर रहा है, तो उसका भी मान लो उसको भी समन्स सर्व कर लिया, तो
ऐसे ही माना जाएगा कि डिफेंडेंट को आपने सर्व कर दिया। इन अ सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, इफ द सर्विस ऑफ समन कैनॉट बी मेड टू द डिफेंडेंट पर्सनली, फिर से डिफेंडेंट को आप पर्सनली नहीं कर सकते हो, इन दैट केस कोई ऑथोराइज्ड एजेंट है उस घर के लिए, उसको भी दे सकते हो। Now where there are two or more defendants, then obviously summons should be served to each and every respective defendants. Now coming to service by court, service by court जो होता है, अभी कोर्ट तो समन्स, कोर्ट ही समन सर्व करेगा, बट कोर्ट का ऑफिसर के थ्रू। पहले बोला पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस, ये प्लेंटिफ जाके खुद दे सकते हैं, नहीं तो कोई कोरियर सर्विस के साथ साथ ये डायरेक्ट सर्विस हो सकता है। Now summons to defendant residing within the jurisdiction of the court shall be served through court officer. मान लो कोई एक मामला चल रहा है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट एक ही जुरिस्डिक्शन के अंदर रहता है, तो उधर में थ्रू कोर्ट एक आदमी होता है प्रोसेस सर्वर। क्या मैंने बोला? प्रोसेस सर्वर। व्हाट लिख लो? प्रोसेस सर्वर, जो समन्स को प्रोसेस करता है। प्रोसेस सर्वर, इशू ऑफ प्रोसेस, तो इशू ऑफ प्रोसेस इट इज इन सीआरपीसी। प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग, जो इशू करते हैं वो समन्स वारंटी होता है। इन सीआरपीसी वी हैव डन दिस। तो इशू ऑफ प्रोसेस करता है प्रोसेस सर्वर। तो समन्स टू डिफेंडेंट डिसाइडिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्ट शैल बी सर्व्ड थ्रू कोर्ट ऑफिसर और एप्रोप्रिएट कुरियर सर्विस के भी साथ हो सकता है। एप्रोप्रिएट कुरियर सर्विस जो रिकॉग्नाइज्ड है। अभी प्रोसेस सर्वर आप कर सकते हो, नहीं तो समन कैन ऑल्सो बी सर्व्ड बाई RPAD, इसका मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। जब आप समन्स देते हो ना, मैंने पहले एक बोला था ड्राइंग करके, तो समन्स तो होता है एक एनवलप में, और उस एनवलप में क्या क्या रहेगा? समन्स रहेगा प्लस प्लेंट का कॉपी रहेगा। उसके साथ साथ बाहर में एक अटैचमेंट रहता है, दैट इज एक्नॉलेजमेंट कार्ड, AD कार्ड बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट ड्यू कार्ड। अभी मान लो समन्स को सर्व किया तो AD कार्ड वापस आता है। पोस्टल ऑफिस के कोरियर का जो आदमी होता है वो AD कार्ड को साइन करके दैट the defendant has received the summon and has acknowledged the same in this acknowledgement card, that becomes a substantial evidence that the defendant has received the summon and the case can now be proceeded. So where the defendant is outside the jurisdiction of the court, मान लो कोई defendant jurisdiction का बाहर रहता है, then summon can be served through an officer of the court within whose jurisdiction the defendant resides. मान लो plaintiff versus defendant लखनऊ में केस हो रहा है, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट लखनऊ में केस हो रहा है, बट डिफेंडेंट रहता है दिल्ली में। तो इधर का कोर्ट जो समन्स इशू किया है, दैट समन कैन बी सेंड टू दिस कोर्ट एंड दिस कोर्ट ऑफिसर एंड दिस जज ऑफ द कोर्ट कैन डायरेक्ट द कोर्ट ऑफिसर टू सर्व द समन टू दिस डिफेंडेंट। मान लो एक कोर्ट से समन गया और दूसरा कोर्ट को डायरेक्शन दिया क्या उधर में डिफेंडेंट अभी रिसाइड कर रहा है, तो उधर में उसी कोर्ट से रिसाइड कर दो, एज इट विल डीम टू थिंक दैट द जुरिस्डिक्शन वेयर द डिफेंडेंट इज रिसाइडिंग द कोर्ट हैज इशूड दैट। मान लो डिफेंडेंट रहता है दिल्ली जुरिस्डिक्शन में और केस हुआ है लखनऊ जुरिस्डिक्शन में। दिल्ली में रहता है डिफेंडेंट और दिल्ली जुरिस्डिक्शन का जो कोर्ट है, तो उसका कोर्ट ऑफिसर को बोल गया क्या, चलो लखनऊ कोर्ट में एक मामला चल रहा है, डिफेंडेंट के केस में एक मामला किया है प्लेंटिफ ने, एक केस किया है प्लेंटिफ ने, तो दिल्ली कोर्ट का जो कोर्ट ऑफिसर है उसको डायरेक्शंस कर देगा दिल्ली का कोर्ट दैट ट्रीट दिस समन एज द दिल्ली कोर्ट हैज इशूड, बट इन रियलिटी लखनऊ कोर्ट ने इशू किया है। सो ये डीम्ड का बारे में है। नेक्स्ट, सर्विस बाय द प्लेंटिफ, रूल 9 है, the court may also permit service of summon by the plaintiff in addition to the service of summon by court. कोर्ट भी समन इशू किया है, प्लेंटिफ भी समन इशू किया है, सर हो सकता है। इसमें क्या है, कॉपी जाएगा समन्स का और एक कॉपी एक्स्ट्रा लगेगा, दैट डजंट मैटर। आप एक समन को 5 बार जेरोक्स कर लो ना, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। एक प्लेंट को 5 बार आप जेरोक्स कॉपी कर लो तो आप भी भेज सकते हो, इसमें कोई मतलब नहीं बनता है। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस क्या होता है, जब आपने बाकी जो अबव प्रोविजंस अभी मैंने डील किया उससे आपने ट्राई किया, बट डिफेंडेंट ने विलफुली अवॉइड कर रहा है, डिफेंडेंट इज विलफुली अवॉइडिंग द सर्विस ऑफ समन। कुछ डिफेंडेंट ऐसा होता है जानबूझ के नेग्लेक्ट कर रहा है। मान लो पोस्ट ऑफिस उसको घर में आके उसका बेल बजाया और देखा पोस्टल कोरियर ऑफिस और देखा ये समन्स है कोर्ट में, वो बोलेगा नहीं नहीं ये आदमी मैं नहीं हूं, ये दूसरा आदमी है। सो समटाइम्स
refusal of such summon can also be treated as receiving that summon. refusal को receive हिसाब से treat कर सकता है. If any defendant is willfully neglecting or refusing to receive the summon, then that can be sometimes treated by the court that the summon has been served. क्योंकि ये willfully neglect कर रहा है. ऐसा सुप्रीम कोर्ट का बहुत केसेस में जजमेंट भी दिया है जिसमें बोला गया, मान लो सर्विस ऑफ समन आपने किया, अभी मान लो समन्स डिफेंडेंट कैसे भी समन्स को नहीं ले रहा है. सो वेयर द डिफेंडेंट और हिज एजेंट रिफ्यूजेस टू साइन द एक्नॉलेजमेंट ड्यू, और वेयर द सर्विंग ऑफिसर आफ्टर ड्यू एंड डिलीजेंस प्रॉपर एड्रेस में जाके सर्व किया है बट रिफ्यूज कर रहा है, डिफेंडेंट नहीं ले रहा है, एंड दैट देयर इज नो लाइवलीहुड ऑफ हिम बीइंग फाउंड एट हिज रेजिडेंस. मान लो ऐसा भी है वो घर में नहीं रह रहा है बट भाग रहा है सब जगह क्योंकि उसको पता चल गया कोर्ट में उसका अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है, ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस अराइज हो गया. द सर्विस ऑफ समन कैन बी मेड. मान लो डिफेंडेंट जानबूझ के नहीं ले रहा है, नहीं तो डिफेंडेंट जानबूझ के भाग रहा है, नहीं तो प्रोसेस सर्वर जो होता है जो गया उसके घर में जाके has tried its best efforts to deliver the summon but तभी भी नहीं ले रहा है because it has been came to the knowledge the defendant is willfully neglecting or not wanting to receive the summon. तो साथ साथ कोर्ट का भी पावर और हो जाता है अलग अलग. कोर्ट कैन what steps the court can take. So the service of summon in that case can be made by affixing a copy on the outer door. क्या हो सकता है? affixing a copy on the outer door. तो एक हो सकता है, एक मिनट, affixing a copy on the outer door. On the outer door, or some conspicuous part of the house, or some conspicuous part of the house. घर में जाके वो कॉपी को चिपक देगा, प्लेंटिफ का घर में जाके कोई एक आउटर डोर में चिपक देगा कि इसका अगेंस्ट में केस हुआ है, ये जानबूझ के नहीं ले रहा है, और some conspicuous part of the house. This is actually what is the object? पब्लिसिटी कर रहा है, इसको इसका इसमें केस किया है और ये जानबूझ के भेज रहा है. कोई आदमी देखेगा तो बोल भी सकता है कि ये आदमी जानबूझ के भाग रहा है, इधर ही रात में आके रहता है बट विलफुली नेग्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द हाउस. नेक्स्ट आपका ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है. मान लो तभी भी कोई काम नहीं हो रहा है, देन व्हाट कैन द कोर्ट डू इन दैट केस? The court can order for affixing a copy एक मिनट, affixing a copy on the court itself. कोर्ट में भी जाके इसके नाम पे जो केस किया समन्स को चिपका देगा, एफिक्स कर देगा, क्या देखो मैटर फाइल हुआ है बट still such person defendant is neglecting. So where the court is satisfied that there is a reason to believe the defendant avoids service or for any other reasons summons cannot be served in the ordinary way. Summons ordinary way से serve नहीं हो पाएगा. The service may be effected in the following manner: by affixing a copy of the summon in the conspicuous place in the courthouse. तो court house में भी जाके उसका समन चिपक सकता है और आउटर डोर में उसका घर में भी हो सकता है. और it can affix a copy on conspicuous part of the house in which the defendant was last residing or was doing business or carrying on any profession. तो एक होता है affixing of copy in the court house, ये पहले जाएगा, this is first one, is first step. second step ये होगा उसके घर में जाके कोई आउटर डोर में और कंस्पिशियस पार्ट में जाके एफिक्स कर देगा. देखो इससे भी जब काम नहीं होता है तो इसका मतलब जानबूझ के कर रहा है. तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्डर 5 रूल 20 में बोला एक चीज जिसमें बोला क्या
substituted service can be affected. Substituted service can be affected. इसका मतलब क्या है, जब प्रीवियस स्टेप से भी कोई काम नहीं हो रहा है, डिफेंडेंट तो भी नेग्लेक्ट कर रहा है, इट कैन बी डन बाय पब्लिशिंग इन अ डेली न्यूज़पेपर. इन डेली न्यूज़पेपर, पब्लिशिंग इन अ डेली न्यूज़पेपर. और डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ता है, जब आदमी लोग सुबह उठ के चाय पीता है तो खबर कागज खुलता है, अखबार खुलता है ना, तो अखबार पढ़ते ही है सब लोग. तो ये जो डेली न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन होगा, दैट मीन्स अ पब्लिश दैट द मैटर इज नाउ ओपन टू द वर्ल्ड एट लार्ज, दैट अ केस हैज बीन इनिशिएटेड, द डिफेंडेंट का और कोई रास्ता नहीं है. तब ऑर्डर 5 रूल 20 में, सॉरी ऑर्डर 5 रूल 20 में भी मान लो कोई काम नहीं हुआ, तब मैटर एक्स पार्टे हो सकता है. एक्स पार्टे डिक्री हो सकता है. एक तरफ कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, एक्स पार्टे डिक्री एक तरफ ऑर्डर दे देगा. क्या द डिफेंडेंट इज विलफुली नेग्लेक्टिंग. नाउ प्लेंटिफ वॉट एवर एलिगेशंस हैज बीन स्टेटेड, इफ द प्लेंटिफ कैन प्रूव इट्स केस अलोन, अदर साइड इज नॉट appearing, the decree can be passed in favor of the plaintiff. But as the defendant has not appeared, willfully, neglectfully, after with proper due diligence, the process server has made the best efforts to deliver the summon, has not received the summon or avoided intentionally. In that case, order 5 rule 20 can be incorporated. The plaintiff can file an application before the court. क्या ये मैटर को जो मैंने मामला किया इसका अगेंस्ट में डिफेंडेंट समन्स रिसीव नहीं कर रहा है, वो कहानी में एक डेली न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन कर देता हूँ. तो उस पब्लिकेशन का हिसाब से क्या हो जाएगा, डिफेंडेंट को मालूम हो जाएगा, नहीं तो इट विल बी डीम्ड. अभी मान लो डिफेंडेंट बाद में आके कोर्ट में बोला, जो खबर कागज मैंने आपने पब्लिश किया वो मैं पढ़ता नहीं हूँ, मुझे पढ़ना है टेलीग्राफ, बट आपने भेजा टाइम्स ऑफ इंडिया में. दैट डजंट मैटर, बिकॉज whenever you are publishing in any daily newspaper, that doesn't matter whatever the defendant may read or study or do anything, matters only it was done by the best efforts. तब एक्स पार्टे डिक्री हो जाता है, और ये एक्स पार्टे डिक्री हो जाता है तो एक तरफ ऑर्डर हो जाता है. प्लेंटिफ कभी कभी मैटर को लेके केस को जीत जाते हैं और डिफेंडेंट का फेवर में, सॉरी डिफेंडेंट का अगेंस्ट में ये डिक्री पास हो जाता है. एंड द डिफेंडेंट विदाउट एनी प्रॉपर एक्सक्यूज और रीजन willfully neglected, did not appear before the court. Now मान लो अचानक फिर से डिफेंडेंट 1 साल बाद अपियर कर गया कोर्ट में, मुझे पता नहीं था, आपने मेरे केस में केस किया. कोर्ट तो पूछेगा, गिव मी सफिशिएंट कॉज व्हाई यू हैव नॉट अपीयर्ड. अभी मान लो 1 साल बाद डिफेंडेंट अचानक आके कोर्ट में बोला, क्या आई एम अपीयरिंग, नाउ आई एम फाइलिंग द रिटन स्टेटमेंट. The matter cannot be proceeded by the court, otherwise the plaintiff will suffer immensely. Plaintiff के लिए वो बहुत बड़ा बुरा चीज हो जाएगा if the defendant is allowed by the court. इसलिए डिफेंडेंट को तभी परमिशन देगा उस मैटर को प्रोसीड करने के लिए, उस मैटर को रिटन स्टेटमेंट अलाउ करने का मतलब कोर्ट परमिशन तभी देगा जब प्रॉपर सफिशिएंट कॉज रीजन डिफेंडेंट दे सकता है. क्योंकि इसका जो इतना खर्चा हुआ, किसका खर्चा हुआ, प्लेंटिफ का. समन्स देने के लिए वो कितना बार, मान लो एक बार जब समन्स देता है, मान लो उसको डिनाई करते हैं, तो फिर से दूसरे बार फ्रेश समन इशू होता है. कोर्ट उसको फ्रेश समन बोलते हैं उसको. सो वंस द प्रीवियस समन was refused by the defendant, or due to after due diligence the defendant was not found where he resides or where he do business or profession, or where he avoids or willfully neglect to receive the summon, in that case again the court can issue fresh summon by the application made by the plaintiff. प्लेंटिफ दूसरा बार बोल सकते हैं एक फ्रेश समन फिर से इशू कर दो, क्योंकि पहला का जो समन है उसका तो डेट चला जाएगा, फिर से फ्रेश समन इशू करेगा. तो फ्रेश समन इशू करने का मतलब और भी खर्चा दोबारा होगा, तो दोबारा करके फिर से ये समन को कोर्ट हाउस में चिपकाओ, उसके घर में जाके चिपकाओ, इतना खर्चा हुआ है. इसके साथ साथ सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का खर्चा हुआ है, डेली न्यूज़पेपर में पब्लिश किया. तो ये सब खर्चा किसको देना पड़ेगा, अचानक डिफेंडेंट अपीयर किया तो डिफेंडेंट को कॉज देना पड़ेगा. कोर्ट विल नॉट अलाउ, कोर्ट विल टेक सफिशिएंट जस्टिफिकेशन, सफिशिएंट रीजन फॉर दैट. व्हाई हैव यू डिलेड द मैटर, व्हाई यू डिड नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट, व्हाई हैव यू नॉट रिसीव्ड द समन, बिकॉज इट वाज डिलीवर्ड
और एक इसके साथ साथ मान लो कभी प्रोसेस सर्वर उसके घर में गया और जाके समन्स को सर्व करने के लिए कोशिश किया, बट डिफेंडेंट उसको धक्का मार दिया, एग्जाम्पल, तो उसके लिए भी दैट इज अ ट्रू वायलेशन ऑफ द लॉ, बिकॉज प्रोसेस सर्वर मान लो एक समन प्रोसेस सर्वर ने सर्व कर दिया और डिफेंडेंट ने रिसीव कर लिया। डिफेंडेंट क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ये डिफेंडेंट का काम नहीं होता है, ये किसका काम होता है, ये आपका प्रोसेस सर्वर का काम होता है। प्रोसेस सर्वर जब समन्स को सर्व करते हैं उसके साथ साथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू भी साइन कराता है। कभी कभी आपने नहीं देखते हो, जब फ्लिपकार्ट में माल आता है, अमेजन में माल आता है, तो आपको बोलते हैं ना भाई इधर पे साइन कर लो, दैट इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट यू हैव रिसीव्ड द गुड। एम आई करेक्ट व्हाट आई एम सेइंग? तो वैसे ही आपने समन्स रिसीव किया कि नहीं, एक्नॉलेजमेंट ड्यू जब आप साइन करते हो, नाउ यू आर ड्यूटी बाउंड। If you don't appear, then any decree can be passed against you. In this case, ex parte has been passed. एक तरफ ऑर्डर दे दिया, अभी एक तरफ ऑर्डर दे दिया, आपने प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि नहीं, ये प्रोविजंस कहाँ दिया है, ऑर्डर 9 रूल 13। आई एम सॉरी, ex parte decree shall be treated as a decree only. So ऑर्डर 9 रूल 13 में आप मैंने डिफेंडेंट एप्लीकेशन कर सकता है फॉर सेट असाइड, बट सेट असाइड तभी होगा जब 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 डिफेंडेंट प्रॉपर रीजन, प्रॉपर कॉज, प्रॉपर जस्टिफिकेशन कोर्ट को दे पाएगा। अदरवाइज कोर्ट विल नॉट अलाउ एक्स पार्टी डिक्री को जो बोला है वही होल्ड करके रखेगा। सर मान लीजिए ऐसा हुआ है, सेट असाइड नहीं किया है, ऑर्डर 9 रूल 13 में एक्स पार्टी डिक्री दे दिया, प्लेंटिफ एक तरफ जीत गया मैटर क्योंकि डिफेंडेंट ने अपेयर नहीं किया है, तो डिफेंडेंट एप्लीकेशन किया वही सेम कोर्ट में जो डिक्री पास किया है, तो वही जो डिक्री पास किया है, जो कोर्ट ने डिक्री दिया है, उधर में एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड नहीं किया है, बोला जो एक्स पार्टी डिक्री दिया था वही करेक्ट है, दैट्स करेक्ट। So in that case, what defendant can take the recourse? The defendant can file an appeal. The defendant can file an appeal if there is a order given by the court that the ex parte decree cannot be set aside. In that case, the defendant has no option. Rather, he has to go for filing the appeal in section 96 CPC. सेक्शन 96 में वो अपील कर सकता है एक्स पार्टी डिक्री के अगेंस्ट में, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, एपीलेट कोर्ट में जाके प्रेयर कर सकता है कि अब मेरा इसलिए मेरा देर हो गया। नाउ इफ द एपीलेट कोर्ट थिंक्स यस इट्स ओके फाइन, द डिफेंडेंट कैन बी गिवन अ चांस अगेन, कैन बी गिवन अ रीजन, कैन बी गिवन अ अपॉर्चुनिटी अगेन, देन द एपीलेट कोर्ट कैन डायरेक्ट द लोअर कोर्ट टू टेक अप द मैटर, टू टेक अप द रिटन स्टेटमेंट एंड प्रोसीड विद द ट्रायल। तो ये एक्स पार्टी डिक्री का कहानी है। दैट्स ऑल टुडे फॉर दिस आई मीन समन्स, रिसीविंग ऑफ समन्स, डिलीवरी ऑफ समन्स एंड एक्स पार्टी डिक्री। थैंक यू, विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। विदाउट देयर appearance, how can a court judge the matter? Because only going through the advertisements made in the plaint or the written statement, the judge will not be able to conduct the whole trial. Because in trial, what the most important part of a civil proceeding, where appearance of parties is very important. Because without such appearance, the judge will not be able to record the statements of the parties, will not be able to record the statements of the witnesses. So here appearance and non-appearance of parties have various consequences, and without any further delay we will straightly go to order 9 of CPC. Order 9 of CPC. See, what is the object of order 9? See, the provisions of the Code of Civil Procedure, however it has been made or structured, in whatever way, the main object of Civil Procedure Code is based on the principle that no proceeding can be initiated, no proceeding in a court of law should be conducted in detriment of any party who is absent. It means that a court cannot proceed with its proceedings in absentia of the parties.
पार्टीज को प्रेजेंट तो होना चाहिए। ऑब्वियसली पार्टीज प्रेजेंट नहीं होगा तो पार्टीज का प्लीडर प्रेजेंट होगा, बट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, एट सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, पार्टीज का बिहाफ में एडवोकेट ही अपीयर हो जाता है एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूट दैट द पार्टीज हैज अपीयर्ड। But there are certain circumstances where the appear in person is demanded by the court. So here order 9 of the court enacts the law with regard to the appearance. So order 9 actually talks about appearance. Order 9 talks about the appearance of the parties, appearance of the parties to suit. Try to note down everyone what I am writing. Appearance of parties to the suit and the consequence of non-appearance. See, everything, whatever it will be said in order 9, this will be all about appearance होने से क्या होता है, non appearance का consequence क्या होता है. So appearance of parties, appearance of parties is contained in order 9 rule 1 and 12. Please note down order 9 rule 1 and 12. And the circumstances where neither party appears, the suit can be dismissed. Where neither party appears in suit, this is mentioned in rule 3. Okay, now where the plaintiff only appears, where the plaintiff only appears, this is contained in rule 6(10). देखो पहला I will discuss about the appearance of parties, that is mentioned in order 9 rule 1 and 2. Now what does rule 1 says? Rule 1 requires the parties to the suit to attend before the court in person or by the pleaders on a date fixed for hearing. जिस दिन कोर्ट ने फिक्स किया हियरिंग के लिए, उस दिन the parties can appear in person. Obviously the court will be very happy if the court can see that the parties have appeared physically, or as per the day which has been fixed in the summon, the defendant has to appear in person or by his pleader. Now rule 1 is all about to attend before the court, and who will going to be attend? The parties to the suit. Now rule 12 provides that where a plaintiff or a defendant who has been specifically ordered to appear in person and does not appear or does not show a sufficient reason or cause for non-appearance, तो कोर्ट कैन डिसमिस द सूट. ये तो हो सकता है कोर्ट डिसमिस कर सकता है जिसको, मान लो प्लेंटिफ ने मामला किया, प्लेंटिफ पहला दिन से ही अपीयर नहीं कर रहा है और प्लेंटिफ को कोर्ट ने बोला that the plaintiff who has filed the matter should be present in the case. Now the court is demanding the appearance of the plaintiff, but the pleader is coming every day. Court is demanding plaintiff. In this case, the suit can be dismissed. Now, in the same facts and circumstances, if the defendant does not appear after duly receiving the summon or neglecting or refusing the summon or getting a knowledge that a case has been filed against him, still not appearing in person, where the court has personally demanded that the defendant should appear. In this case, ex parte decree can be passed against the defendant. This was all about order 9 rule 1 and 12. Now coming to where neither party appears, जब प्लेंटिफ डिफेंडेंट दोनों पार्टी अपेयर नहीं किया तो उस केस का मेरिट क्या हो सकता है, केस का क्या डिक्री हो सकता है, केस क्या डिसमिस हो जाएगा, क्या रिजेक्ट हो जाएगा. लेट अस सी वेयर नाइदर द प्लेंटिफ नॉर द डिफेंडेंट, या प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, वेयर नाइदर द प्लेंटिफ नॉर द डिफेंडेंट अपियर्स व्हेन द सूट इज कॉल्ड आउट फॉर हियरिंग. जिस दिन हियरिंग के लिए बोला गया, जो केस किया है उसका तो एटलीस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए, जिसका अगेंस्ट में केस हुआ है
वो नहीं इंटरेस्ट होगा तो भी तो एक्स पार्टी डिक्री हो सकता है। बट जिन्होंने केस फाइल किया है दैट पार्टी शुड बी अवेयर दैट ही हैज फाइल्ड अ केस एंड ही शुड बी एटलीस्ट ड्यूटी बाउंड एंड कंप्लाइंग विद द dates of hearing that is actually required. So when the suit is called out for hearing and neither party appears, the matter can be dismissed. The matter can be dismissed. However, the dismissal suit can be set aside also. Dismissal order, देखो एक कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट ऑर्डर 9 का हिसाब से जो रूल 3 है, कोर्ट एक सूट को डिसमिस कर सकता है। बट उस डिसमिसल का ऑर्डर के अगेंस्ट में the party who has not appeared maybe for some sufficient reason, वो sufficient reason if कोर्ट के सामने वो दे सकता है तो जो डिसमिसल का ऑर्डर था that can be set aside. That can be set aside. Set aside का मतलब क्या है, जो ऑर्डर डिसमिसल दिया था वो ऑर्डर को सेट असाइड करके फिर से मामला को चालू करेगा, प्रोसीडिंग्स को शुरू करेगा। सपोज मान लो प्लेंटिफ ने मामला किया है 1/7/2008, समन सर्व हो गया डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट नहीं आया जिस दिन डेट था, WS नहीं फाइल किया और इसके साथ साथ प्लेंटिफ भी नहीं आया कोर्ट में जिस दिन फिक्स हुआ था हियरिंग का डेट। नाउ व्हाट कैन हैपन, द कोर्ट कैन डिसमिस द सूट बट such dismissal of suit does not bar the plaintiff from filing a fresh suit again. वो फिर से दोबारा चाहिए तो फ्रेश शूट फाइल कर सकते हैं बट उसमें ज्यादा खर्चा हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक मैटर फाइल किया है, नहीं आ पाया इसलिए डिसमिस हो गया। सो व्हेन द मैटर हैज बीन डिसमिस्ड इट इज बेटर फॉर द प्लेंटिफ टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द डिसमिसल ऑर्डर। सो द प्लेंटिफ में ऑल्सो अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड सच dismissal and if the court is satisfied that there was a sufficient cause for his non-appearance, it shall pass an order setting aside the dismissal. तो आपको sufficient cause देना होगा, sufficient cause आपको देना होगा, right? Now where only plaintiff appears but defendant नहीं appear किया, चलो ये रूल 6 and 10 बोलते हैं। चलो where the plaintiff appears and the defendant does not appear, the plaintiff has to prove, क्या प्रूफ करना है उसको, क्या सर्विस ऑफ समन हैज बीन डिलीवर्ड, सर्विस ऑफ समन वाज गुड, सो द सर्विस ऑफ समन ऑन द डिफेंडेंट वाज मेड, ये प्रूफ करना पड़ेगा। सर कैसे प्रूफ, मान लो जिन्होंने सर्विस को इफेक्टिव किया था 2 मिनट के लिए, समझो कोई पोस्टल कुरियर का आदमी जो गया और एक्सक्यूज मी, जो गया और कोर्ट में जाके समन्स को जो समन्स लेके डिफेंडेंट का घर में गया और समन्स सर्व किया है, समन को डिलीवरी किया है डिफेंडेंट का घर में, इन दैट केस द प्रोसेस सर्वर और द पर्सन और द कोर्ट ऑफिसर और द पोस्टल कुरियर मैन will sign the acknowledgement due AD card and that AD card will help the plaintiff in support of his case that the defendant received or not received the summon or neglected the summon. That will be treated in a varied manner. So if there is such circumstances where the plaintiff has appeared and the defendant does not appear but the plaintiff has proved that service of summon was made to the defendant, or if the service of someone is proved, the court may pass what, ex parte. The court may pass ex parte. ex parte का मतलब है एक तरफ डिक्री दे देगा, ex parte डिक्री, ex parte को डिक्री माना जाता है, ex parte डिक्री, because why, the service of someone was done, despite of the fact service was done, the defendant did not appear. So this is totally a one side case now, right? So the provisions however is confined to first hearing. हाँ ठीक है, देखो ये फर्स्ट हियरिंग तक ये मैटर को कन्फाइन हो सकता है। दिस ऑल अबाउट द एक्स पार्टे। अगेन एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट डज नॉट एब्सॉल्व द कोर्ट फ्रॉम इट्स ड्यूटी टू डू जस्टिस। देखो कोर्ट का काम क्या है, कोर्ट का काम जस्टिस देना है। अभी प्लेंटिफ ने मामला फाइल किया, मान लो डिफेंडेंट अपियर नहीं कर पाया, ऐसा 2 मिनट के लिए सोचो क्या डिफेंडेंट का उतना सफिशिएंट मींस नहीं है क्या एक एडवोकेट को हायर करके कोर्ट में उसका मैटर पेश करना।
सो डिफेंडेंट, सपोज टेक एन एग्जांपल, इज एन इंडिजेंट पर्सन. इंडिजेंट का मतलब होता है जिसके पास इनसफिशिएंट पैसा उसके पास जितना, मान लो एक आदमी का जितना होना चाहिए एक कोर्ट में केस करने के लिए, उतना उसके पास नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है. सो इन दैट मैटर व्हाट कैन हैपन, दैट एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट will not compel the court, will not make the court to do injustice. जस्टिस उसको देना ही होगा. तो ऐसा प्लेंटिफ का एलिगेशंस को पढ़ के डिफेंडेंट का स्टेटस देख के डिफेंडेंट नहीं आया, उसके हिसाब से that when the defendant is not present, that means the defendant is intentionally avoiding, or the defendant is willfully neglecting, or the defendant is the wrongdoer. ऐसा कोर्ट कभी भी उसको हेल्ड नहीं कर सकता है. आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब यही है, मान लो प्लेंटिफ अपियर किया, प्लेंटिफ का जो एवर्टमेंट से स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट सब कुछ एलिगेशंस वगैरह प्लेंट में प्रेजेंटेशन किया है, बट द डिफेंडेंट विद इन द टाइम बाउंडिंग ऑफ 30 days डिड नॉट अपियर बिफोर द कोर्ट. सो फॉर इस नॉन अपीयरेंस, it does not mean that the court will do injustice. It means that होगा, कोई कारण हो सकता है, मान लो defendant has not appeared. Defendant has not appeared. Now his non-appearance does not mean that the court can do injustice. After going through the avertments of statements made in the by the plaintiff, if the court thinks that the plaintiff was the sufferer, yes, any wrong was done to the plaintiff, as per to that the court can pass ex parte decree and also give a favorable decree in favor of the plaintiff. But that doesn't mean कि defendant के ऊपर पूरा का पूरा injustice होना चाहिए. That cannot be done. So again, absence of defendant does not absolve the court from its duty to justice. It is bound to ensure that the avertments in the plaint stand proof. जो plaintiff बोल रहा है उसके प्लेंट में, प्लेंटिफ को एक साइड से उसको प्रूफ करना है, हाँ डिफेंडेंट ने ऐसा किया था, देन ओनली अ डिक्री कैन बी पास्ड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ. सो अनदर सर्कमस्टेंसेस, थोड़ा मैं इसको आई एम ट्राइंग टू गो टू द नेक्स्ट और रूल्स 7 and 11, दैट्स मच मोर इम्पॉर्टेंट जो होता है. चलो, आई एम रबिंग ऑल दिस थिंग्स. Yes. Yes, can you switch up the file? Order. ये कलर अच्छा नहीं है, चलो. Order 9, rule 7 to 11. Order 9, rule 7 to 11. This is all about where only the defendant appears, but the plaintiff does not appear. अरे ये क्या है सर, प्लेंटिफ ने केस फाइल किया और प्लेंटिफ नहीं अपियर किया, बट डिफेंडेंट अपियर किया. सो सर ये होता है, देखो, एज पर इफ यू कैन मेक अ सर्वे ऑफ सिविल लिटिगेशन, बहुत कम ही ऐसा केस है जहां प्लेंटिफ ने केस फाइल किया बट प्लेंटिफ ने अपियर नहीं किया, खाली डिफेंडेंट अपियर किया. होता है ऐसा ही है क्या, डिफेंडेंट अपियर नहीं करता है, बट लॉ सबके लिए बना हुआ है, सब सर्कमस्टेंसेस को टैकल करने के लिए लॉ है. तो सीपीसी में ये बोला गया क्या, वेयर द डिफेंडेंट अपियर्स एंड द प्लेंटिफ डज नॉट अपियर and the defendant does not admit the plaintiff's plaintiff's claim, and if the defendant does not admit the plaintiff's claim, plaintiff ने plain file करके खुद ही appear नहीं किया, और defendant तो उसका तो एक मौका मिल गया ना, वो तो बोलेगा plaintiff जो बोल रहा है, जो statements of facts whatever made in the plaint are all falsified, are all concocted, are all manufactured, are all vexatious and scandalous and frivolous. कितना पॉइंट मैंने डिस्कस किया, स्कैंडलस, फ्रिवोलस, वेक्सेशियस, सब झूठा, सब कहानी है, एडमिट नहीं किया है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट क्या डिफेंडेंट को छोड़ देगा? बात यही है क्या, वेयर द डिफेंडेंट अपीयर्स, नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन द डिफेंडेंट. कोर्ट का भी कुछ
नियम है। जैसे हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 101 में किया था बर्डन ऑफ प्रूफ। आप 101 देखोगे उसमें लिखा है बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ। तो प्लेंटिफ ने जो एलिगेशंस डिफेंडेंट के ऊपर दिया है और प्लेंटिफ खुद अपेयर नहीं हुआ, सो द बर्डन ऑफ प्रूफ इज शिफ्टिंग अपॉन द डिफेंडेंट टू प्रूव दैट द एलिगेशंस व्हिच वर मेड बाय द plaintiff are false. So where the defendant appears and the plaintiff does not appear and the defendant does not admit the plaintiff's claim, wholly or partly, the court shall pass an order dismissing the suit. तो इस केस में एक्चुअली क्या होगा, सूट को डिसमिस हो जाएगा, सूट को डिसमिस हो जाएगा। प्लेंटिफ का अपीयरेंस से, प्लेंटिफ का अपीयरेंस से डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ बट प्लेंटिफ अपीयर हुआ, तो दैट इन केस व्हाट कैन हैपन, एक्स पार्टी। प्लेंटिफ अपीयर हुआ बट डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ है, तो इन दैट केस एक्स पार्टी। बट प्लेंटिफ अपीयर नहीं हुआ बट डिफेंडेंट अपीयर हुआ, तो इन दैट केस डिसमिसल हो जाएगा। सो रूल 8 enacts that if the defendant admits the plaintiff's claim as a whole or part thereof, जो होता नहीं है इसमें बोले कि डिफेंडेंट मान लो एडमिट कर लिया, उतना तो अच्छा डिफेंडेंट आज का दुनिया में नहीं मिलेगा। क्या प्लेंटिफ अपीयर नहीं किया और डिफेंडेंट अपीयर किया और अपीयर करने का बाद एडमिट भी कर रहा है प्लेंटिफ ने जो बोला, दैट डज नॉट हैपन इन रियलिटी। हकीकत में ये बहुत बड़ा एक धोखा बात लिखा है। बट रूल 8 enacts that if the defendant admits the plaintiff's claim as a whole or part thereof, the court will pass a decree against the defendant upon such admission. तो एडमिशन तो वो नहीं करता है ना, पहले से मैंने आपको बोला क्या, वो तो एडमिट नहीं करेगा। He will say that all things which has been said by the plaintiff is false and concocted. Okay, so where only defendant appears, ये भी dismissal का बारे में आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है ऑर्डर 9 रूल 2 and 5, रूल 2 and 5 where summons is not served। तो ये प्लेंटिफ का गलती है ना, where summons is not served, सॉरी फॉरवर्ड मैंने लिख दिया। So when summons is not served, that is another different consequences and different circumstances. So summons not served properly to the defendant due to failure of plaintiff to pay the cost नहीं दे पाए, क्योंकि समन भेजने के लिए खर्चा भी होना पड़ेगा ना। कोर्ट तो खुद तो नहीं करेगा, कोर्ट विल नॉट पे दैट, कोर्ट विल इशू समन बट द डिलीवरी ऑफ द समन इज टोटली एट द कॉस्ट ऑफ द प्लेंटिफ। सो इट इज अ फंडामेंटल रूल ऑफ लॉ, I mean rule of procedural law, that a party must have a fair and reasonable opportunity to represent his case। अभी समन्स नहीं गया तो डिफेंडेंट कैसे, डिफेंडेंट को मालूम आएगा क्या मैटर प्लेंटिफ ने फाइल किया मेरे अगेंस्ट में, एंड फॉर दैट पर्पस ही मस्ट हैव अ नोटिस ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग्स। रूल 2 of order 9 says that suit may be dismissed where the summon is not served on the plaintiff's failure to pay cost। तो ये जो मैटर बोले ये plaintiff's failure to pay cost for service। No such order can be passed in spite of such failure of the plaintiff if the defendant appears in person or by his authorized agents on the day fixed। ये भी एक मतलब बोला है ऐसा, मान लो plaintiff has failed to serve someone on the reason on account of not paying the postal fees, एक कारण समझ लो, बट डिफेंडेंट को कैसे भी मालूम आ गया कि आप प्लेंटिफ मेरे अगेंस्ट में केस किया है, डिफेंडेंट इतना अच्छा आदमी निकला वो खुद ही अपियर कर गया, ऐसा नहीं होता है, बट मान लो अपियर कर गया तो मैटर शुरू हो जाएगा और उसका हिसाब से मैटर विल बी डेल्ड। सो however the plaintiff may also file a fresh suit even after dismissal of suit under rule 2। rule 2 में मान लो डिसमिस हो गया फिर से फ्रेश सूट वो फाइल कर सकता है प्लेंटिफ। कमिंग टू द सेशन ऑफ एक्स पार्टी डिक्री, एंड एक्स पार्टी डिक्री का जो मेन चीजें है ऑर्डर 9 रूल 13 इज टॉकिंग अबाउट
सेट असाइड ऑफ एक्स पार्टी डिक्री, बट थोड़ा पहले समझ लेते व्हाट इज एक्स पार्टी डिक्री। देखो एक्स पार्टी डिक्री को मतलब व्हाट वी कैन से पास्ट इन द एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट, पास्ट इन द एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट। बट इसका मतलब ये नहीं है क्या एक बार में ये डिक्री आपको प्लेंटिफ को मिल गया। मान लो प्लेंटिफ ने समन सर्व किया बट डिफेंडेंट ने अपीयर नहीं किया, नॉन अपीयरेंस के कारण एक्स पार्टी, ऐसा नहीं देता है। पहले प्लेंटिफ समन सर्व किया, देखो एक्स पार्टी डिक्री कब होता है, पास्ट इन एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट। देखो मैं आपको स्टेप का तरह क्लियर करता हूं। स्टेप 1, सिविल केस में जब प्लेंट फाइल होता है, प्लेंट फाइल करने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप्स, इशुएंस ऑफ समन, इशुएंस ऑफ समन। स्टेप 2, सर्विंग ऑफ समन, सर्विस ऑफ समन, सर्विस ऑफ समन। This can be done by the help of by court also, personal service, RPAD, registered post acknowledgement due, or any courier service etc. ठीक है। स्टेप 3, मान लो अवॉइड किया है, फर्स्ट समन इशू किया है, दिस इज फर्स्ट समन, फर्स्ट समन। तो ये फर्स्ट समन को डिलीवरी करने के लिए चला गया, कौन गया सर, एनी कोर्ट ऑफिसर और प्रोसेस सर्वर। डिलीवरी ऑफ समन, डिलीवरी ऑफ समन कौन कर रहा है, प्रोसेस सर्वर, नहीं तो कोर्ट ऑफिसर। डिफेंडेंट विलफुली नेग्लेक्ट कर रहा है, नहीं तो रिसीव नहीं कर रहा है, नॉट रिसीविंग, नॉट रिसीविंग। ऐसा हो सकता है क्या उसका रेसिडेंट पता नहीं चल रहा है। स्टेप 4, वापस आ जाएगा समन्स, समन्स दिया है नहीं मिला है, फिर से प्रोसेस सर्वर समन्स को कोर्ट में लेके आ जाएगा, फिर से प्लेंटिफ का घर चला जाएगा। दैट इज अगेन इट इज कमिंग बैक फ्रॉम वेयर इट हैज बीन सेंट। तो फिर से फ्रेश समन के लिए अप्लाई करेगा, कौन अप्लाई करेगा, फ्रेश समन के लिए वही प्लेंटिफ अप्लाई करेगा, फ्रेश समन के लिए अप्लाई करेगा, फिर वही प्रोसीड्योर जाएगा, फिर रिजेक्ट होगा तो स्टेप 5 आएगा, स्टेप 5 आएगा, फ्रेश समन भी रिसीव, फर्स्ट समन और फ्रेश समन को हम लोग बोलते हैं सेकंड समन, पकड़ लो। तो पहले समन गए, नेक्स्ट फ्रेश समन, उसके बाद स्टेप 5 में उसका अगेंस्ट में जो समन है, तो कंस्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस में एफिक्स कर देगा, कंस्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस में एफिक्स कर देगा, एफिक्स, कंस्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस में एफिक्स कर देगा, एफिक्स में चिपका देगा कोर्ट में, जिस कोर्ट में मामला क्या है उस उधर का जो कंस्पिशियस पार्ट होगा समन्स एफिक्स कर देता है, एफिक्सिंग। नाउ कमिंग टू स्टेप 6, पहले थोड़ा इसको इरेज करने दो मुझे। स्टेप 6, कोर्ट हाउस में एफिक्स हो गया, उसके बाद एफिक्सिंग समन in the outer door of conspicuous, outer door of defendant और conspicuous part of the house, उसे घर में जाके वो चिपका देगा हाउस। ये भी काम नहीं होता है तो स्टेप 7 आता है। स्टेप 7 आता है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, जब पहले का जो प्रोसेस स्टेप्स काम नहीं किया तब सब्स्टिट्यूट सर्विस में डेली न्यूज़पेपर में मैटर को पब्लिश कर दो, क्या प्लेंटिफ हैज ब्रॉट अ सिविल सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट। जब सब्स्टिट्यूट सर्विसेज भी काम नहीं होता है तब कोर्ट को एक कंक्लूजन में आना ही है, एंड दैट कंक्लूजन इज पासिंग अ डिक्री अगेंस्ट द डिफेंडेंट इन एब्सेंशिया, पासिंग द डिक्री अगेंस्ट द डिफेंडेंट। तो स्टेप 8 जो फाइनल है हमारा, स्टेप 8 जो आ रहा है दैट इज एक्स पार्टे डिक्री, एक्स पार्टे डिक्री।
रिवीजन करो. नंबर 1, आई एम सेइंग कोर्ट समन इशू किया है, इशू करने के बाद डिलीवरी होगा, डिलीवरी किया रिजेक्ट हो गया, नहीं सॉरी नॉट रिजेक्ट, रिसीव नहीं किया है, विलफुली नेग्लेक्ट कर रहा है, विलफुली नेग्लेक्ट किया, फिर से फ्रेश समन के लिए अप्लाई करो क्योंकि पहला का समन वापस आ जाएगा. फ्रेश समन के लिए आपने अप्लाई किया, फिर वो भी वापस आ गया पहले का तरह. नेक्स्ट कम्स एफिक्सिंग द कॉपी इन द कोर्ट हाउस. नेक्स्ट कम्स एफिक्सिंग द कॉपी ऑफ समन इन द आउटर डोर और कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस ऑफ द डिफेंडेंट. उसे घर में जाके एफिक्सेशन कर देगा. नेक्स्ट कम्स सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, ऑर्डर 5 रूल 20. सब ऑर्डर 5 पे ये कहानी था. तो ऑर्डर 5 रूल 20 से जब प्लेंटिफ थक जाता है उसके बाद कोर्ट को एक कंक्लूजन में आना है, दैट इज ऑर्डर 9 में जो बोला है एक तरफ ऑर्डर दे सकता है, दैट इज एक्स पार्टे डिक्री. आई थिंक कॉन्सेप्ट इज नाउ क्लियर, मोर देन क्लियर. चलो ये थोड़ा I'm erasing all this part. Coming back to the discussion of ex parte decree. So ex parte decree is passed in absence of the defendant. In absence of the defendant. In absence of defendant. Defendant appear नहीं किया. So where the plaintiff appears and the defendant does not appear when the suit is called out for hearing. तो हियरिंग में हियरिंग का टाइम आ गया बट डिफेंडेंट एब्सेंट रहा. इन एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट एब्सेंट हो गया. द सूट इज कॉल्ड फॉर हियरिंग एंड द डिफेंडेंट इज ड्यूली सर्व. डिफेंडेंट को समन सर्व किया है. मान लो डिफेंडेंट को समन्स मिल गया, डिफेंडेंट को समन्स मिल गया, डिफेंडेंट समन को रिसीव भी किया है, तभी भी वो अपियर नहीं कर रहा है. दैट मीन्स वेयर द डिफेंडेंट हैज ऑलरेडी रिसीव्ड द समन but despite of the fact of receiving he is still not appearing, then ex parte decree comes into play. Ex parte decree comes into play. Now this ex parte decree can be set aside. It can be set aside by virtue of by virtue of order 9 rule 13. इसको बोलता है सेट असाइड ऑफ एक्स पार्टे डिक्री. बट इसके लिए प्रॉपर कॉस्ट चाहिए क्योंकि एक तरफ जब ऑर्डर कोर्ट डिफेंडेंट का इसमें दे दिया, अचानक डिफेंडेंट कोर्ट में अप्लाई किया, रिटेन स्टेटमेंट लेके खड़े हो गया दैट आई एम अपियरिंग नाउ, बट द कोर्ट विल आस्क फॉर जस्टिफिकेशन. वेयर यू नाउ दिस डेज, व्हाट यू आर डूइंग इन द फाइल व्हेन द समन वाज रिसीव्ड. फ्रेश समन को रिसीव आपने नहीं किया है, आपका घर में एफिक्सिंग कर दिया है, तभी आपको जानकारी नहीं हुआ. लास्ट बट नॉट द लिस्ट डेली न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर दिया, तब कहाँ था. तो उसको प्रॉपर कॉस्ट देना है, तभी ऑर्डर 9 रूल 13 में एप्लीकेशन ग्रांट होगा, उसके साथ साथ सेट असाइड होगा, उसके साथ साथ सेट असाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा. अभी मान लो सेट असाइड नहीं किया और कोर्ट ने बोला एक्स पार्टे डिक्री जैसे दिया वैसे ही रहेगा. इन दैट केस ही हैज अनदर चांस, दैट इज ही कैन गो इन सेक्शन 96, अपील कर सकता है अगेंस्ट द डिक्री. So what are the actual remedies? See, मैंने 2 रेमेडी बोला और 2 रेमेडी इधर में है. बंदा जो डिफेंडेंट है वो रिवीजन भी कर सकता है, उस एक्स पार्टे डिक्री के अगेंस्ट में, एक्स पार्टे का डिक्री में रिवीजन कर सकता है अंडर ऑर्डर 115, सेक्शन 115 रिवीजन भी कर सकता है. सेक्शन 115 में एक्स पार्टे डिक्री का अगेंस्ट में रिवीजन भी कर सकता है. नेक्स्ट, द डिफेंडेंट कैन आल्सो अप्लाई फॉर रिव्यू मतलब सेम कोर्ट में वो रिव्यू कर सकता है अंडर ऑर्डर 47 रूल 1 में रिव्यू भी कर सकता है. ओके, सो वी आर डन विद द एक्स पार्टे डिक्री. नाउ हु कैन अप्लाई? ऑब्वियसली डिफेंडेंट कैन अप्लाई समन्स. अभी मान लो समन्स उसका, मान लो ऐसा हो सकता है एक्स पार्टे डिक्री पास किया बट डिफेंडेंट ने अपियर किया और बोल रहा है दैट आई डिड नॉट रिसीव द समन, एंड प्लेंटिफ सेइंग दैट यस द समन वाज रिसीव्ड, द समन वाज नेग्लेक्टेड बाय द डिफेंडेंट, बट डिफेंडेंट इज सेइंग as provided in rule 6 that suit may proceed ex parte against the defendant only when it is proved by the plaintiff to the satisfaction of the court that the defendant did not appear even though summon was duly served. समन सर्व किया है, डिफेंडेंट को जानकारी था तो भी अपियर नहीं किया, तभी एक्स पार्टे डिक्री आता है. समन्स ठीक से सर्व नहीं किया है तो ये प्लेंटिफ का
कारण के लिए हुआ है. So in that case, ex parte decree cannot be given. Ex parte decree cannot be given. And it is the burden of proof on the party, that is the defendant, to prove that the summon was not served. प्लेंटिफ बोल रहा है समन सर्व किया है, पोस्टल कुरियर मैन बोल रहा है समन सर्व किया, बट अभी डिफेंडेंट बोल रहा है नहीं समन सर्व नहीं किया था, समन मुझे नहीं मिला था. सो द बर्डन ऑफ प्रूफ इज शिफ्टिंग अपॉन द डिफेंडेंट टू प्रूव दैट समन वाज नॉट सर्व. नेक्स्ट कमिंग टू सेक्शन 148, that is caveat. 148A, that is caveat. As per your syllabus, section 148A caveat थोड़ा कनेक्टेड नहीं है, इससे थोड़ा what you can say, this is totally a different concept. Section 148 caveat. 148A talks about caveat. Lodging of caveat. Lodging of caveat. Just give me only 1 minute. So section 148 पढ़ोगे तो उसमें जो टर्म लिखा है right to lodge a caveat. राइट टू लॉज अ केविएट. देखो एक्चुअली केविएट समझने के लिए आपको देखना है, जैसे मान लो प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट 2007 में एक सूट फाइल किया था, मैटर को डिस्पोज कर दिया 2020 में, और प्लेंटिफ इज द डिक्री होल्डर. प्लेंटिफ इज द डिक्री होल्डर. प्लेंटिफ मैटर, प्लेंटिफ का साइड में मैटर गया है, प्लेंटिफ का फेवर में मैटर गया है, प्लेंटिफ इज द डिक्री होल्डर. नाउ व्हाट डिफेंडेंट can do next, what recourse the defendant can take? Defendant can go for an appeal. अभी डिफेंडेंट को पता है डिफेंडेंट 2020 में वो केस हार गया, साथ में वो केस चल रहा था, चलते 2020 में कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि प्लेंटिफ इज द एक्चुअल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, द डिक्री इज इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ. तो डिक्री इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, नाउ बीइंग एग्रीव्ड, बीइंग डिससैटिस्फाइड विद द डिक्री ऑफ द लोअर कोर्ट, obviously the defendant will now go for what? Defendant now go for appeal court. Appellate court में जाएगा. Defendant will now go for appellate court. एक बार थोड़ा स्पेलिंग गलती हो गया. Defendant will now go for appellate court. तब डिफेंडेंट बन जाता है क्या? एपिलेंट, और प्लेंटिफ बन जाएगा रिस्पोंडेंट. ये कंसेप्ट याद रखना. जब प्लेंट फाइल हुआ था प्लेंटिफ, और किसका इस्तेमाल किया था? डिफेंडेंट. वही डिफेंडेंट जब अपील कर रहे हैं तब एपिलेंट बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और रिस्पोंडेंट हो जाएगा प्लेंटिफ. बात ये क्या है, प्लेंटिफ को पता है 2020 में उसको डिक्री मिल गया, और प्लेंटिफ को ये 100% पता है कि अभी डिफेंडेंट कहाँ जाएगा. कहाँ जाएगा? डिफेंडेंट जाएगा एपिलेट कोर्ट में जाएगा. डिफेंडेंट अभी अपील करेगा क्योंकि उसका और कुछ मौका नहीं है, उसको एक ही मौका है अभी अपील करना है ऊपर कोर्ट में. अपर कोर्ट में जाके वो अपील करेगा. तो प्लेंटिफ क्या किया? प्लेंटिफ जाके, मान लो दुर्गापुर कोर्ट में मामला चल रहा था, और दुर्गापुर कोर्ट 2020 में ये डिक्री दे दिया. अभी अपील होगा तो कहां जाएगा? अपील होगा तो सर मान लीजिए दुर्गापुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जाएगा. सो डीडीसी कोर्ट में जाके, अभी दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके वो अपील होगा. 2020 का बाद ही अपील होगा मान लो. तो इधर में प्लेंटिफ दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके एक केविएट लॉन्च करता है. केविएट लॉन्च. केविएट का मतलब क्या है? केविएट का मतलब है इंटीमेशन. केविएट का मतलब है क्या? इंटीमेशन. इट मींस इंटीमेशन. सर व्हाट इंटीमेशन? Intimation that whenever any party is expecting that any suit or proceedings is going to be filed, मैंने what क्या use किया? When any party is expecting that any suit or proceedings is going to be filed against him, that party can file or lodge a caveat in that particular court, so that the court, when the actual matter will be taken, no order can be passed against the caveator. जो लॉन्च किया है, जो लॉन्च करते हैं उसको बोलते हैं केविएटर. केविएटर. अगेंस्ट द केविएटर. अगेंस्ट द केविएटर. इसका मतलब क्या है? मान लो मैं प्लेंटिफ हूं
और मैं दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके एक केविएट लॉन्च कर दिया, क्योंकि मुझे पता है डिफेंडेंट अभी अपील कोर्ट में आएगा, अपील फाइल करेगा अगेंस्ट द डिक्री। तो मेरा केविएट फाइल करने से मेरा क्या फायदा होगा? फायदा यही होगा, डिफेंडेंट अभी जो अपीलेंट हुआ है कुछ भी करेगा तो मेरे को इंटीमेशन देके ही उसको करना होगा, और कोर्ट मेरे सिवा मुझे पूछ के, मुझे नहीं बुला के कुछ कर नहीं सकता। कोर्ट हैज टू कॉल मी इन द फर्स्ट हियरिंग, कोर्ट हैज टू do each and every step. Even if the court admits the appeal, it can admit the appeal only with my presence, with intimation to me. तो बात ये है सर, मान लीजिए, एक मिनट रुक जाओ सर, मान लीजिए 2 मिनट के लिए आप केविएटर हो और मैं प्लेंटिफ था 2020 का जो 2020 में जो डिक्री दिया था, आई वॉज द डिक्री होल्डर, और मुझे पता है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा अपील करने से। वैसे हाई कोर्ट में भी जा सकता है अपील करने से। तो मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर से अपील करेगा तो मैं हाई कोर्ट में जाके एक केविएट लॉन्च कर देना पड़ेगा। दैट मीन्स if I am expecting that again the defendant, who is now the defendant in this case and who has lost the case, will now go for an appeal, being dissatisfied with the decree of the lower court, he will have no option rather to file an appeal before the court. He is going to file an appeal before the court. इससे आगे मैं एक कैविएट लॉन्च कर देता हूं। इससे क्या फायदा होगा? यही फायदा होगा कि जो भी करेगा कोर्ट मुझे बुलाएगा पहले, जो भी करेगा कोर्ट, कुछ भी फर्स्ट हियरिंग बोलो क्या बोलो, कोई भी ऑर्डर पास नहीं हो सकता है विदाउट माई प्रेजेंस, विदाउट माई प्रेजेंस। तो माई प्रेजेंस इज नाउ नीडेड। सो जब केविएट हो जाता है तो क्या है, मान लो जो केविएट लॉन्च किया तो केविएटर अभी एपिलेंट इधर में डिफेंडेंट है और वर्सेस रिस्पोंडेंट। सो हियर द रिस्पोंडेंट, जब इसको, अभी रिस्पोंडेंट तभी होगा जब अपील को एडमिट कर लेगा, तभी तो मुझे रिस्पोंडेंट बुलाओगे। तो रिस्पोंडेंट का आगे मैं क्या किया, मैंने एक, अभी मान लो ये डीडीसी कोर्ट का मैटर है, डीडीसी कोर्ट दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील किया है ए ने, और आई एम द रिस्पोंडेंट एंड आई नो दैट मिस्टर ए हु वाज प्रीवियसली द डिफेंडेंट इन द केस विल नाउ गो फॉर अपील। मैंने उस कोर्ट में जाके एक केविएट लॉन्च कर दिया। इस केविएट लॉन्च करने से क्या होगा, ये बंदा जो अपीलेंट है, जो भी अपील करता है उसका एक कॉपी मुझे देगा, उसका एक कॉपी, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स पहले मुझे सर्व करेगा। सो व्हेनेवर अ केविएट इज फाइल्ड बाय द केविएटर, द वन हु इज अप्रोचिंग बिफोर द कोर्ट should give all intimations with all hard copies and documents, whatever the appellant is going to file or whatever the party is going to file, should provide a physical intimation का तरह मतलब कॉपी वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक बार सर्व करना होगा उसको, तभी मैटर आगे सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता है। नाउ रीड द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 148A, वी आर जस्ट इन द कंप्लीशन। सो राइट टू लॉन्च अ केविएट, when application is expected, what क्या use किया, expected। so when application is expected to be made or has been made in a suit or proceeding instituted or about to be instituted in a suit or proceeding or about to be instituted in a court, any person claiming a right to appear before the court। so इधर में कौन claim कर रहा है for the right to get appearance? that is a caveator। So any person claiming a right to appear before the court on the hearing of such application may lodge a caveat। अभी तुम बोलोगे सर, मान लीजिए एपिलेंट अपील फाइल किया, तो जब अपील फाइल करना है तो रेस्पोंडेंट को तो कॉपी ऐसे भी वैसे भी सर्व करना पड़ेगा। बट तो केविएट, ये प्रीवियस इंटीमेशन का मतलब क्या बनता है? देखो, केविएट फाइल करने से एक फायदा मिलता है क्या, कुछ भी मैटर फाइल करोगे तो तब तुमको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो मैं केस का रिस्पोंडेंट हूं ना, तो रेस्पोंडेंट का हिसाब से मुझे डिफेंस लेने का एक मौका मिल जाएगा, एक प्रीवियसली मौका मिल जा रहा है, एक टाइम मिल जा रहा है मुझे। नहीं तो अचानक अपील फाइल किया तो मुझे हड़बड़ी करके रेस्पोंडेंट का हिसाब से मुझे ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़ेगा उस अपील का अगेंस्ट में।
So where a caveat has been lodged under subsection 1, the person by whom the caveat has been lodged hereinafter referred as a caveator shall serve a notice. Notice देना पड़ेगा. Notice shall serve a notice of the caveat by registered post acknowledgement due on the person by whom the application is made. अभी मान लो जो एपीलेट कोर्ट में जाके अपील फाइल करेगा, तो केविएटर का काम क्या है? केविएटर उस कोर्ट में पहले जाके केविएट फाइल कर देगा. जब ही केविएट फाइल करता है तो कोर्ट केविएट नोटिस इशू करने के लिए, जस्ट लाइक अ समन, कोर्ट केविएट नोटिस इशू करने के लिए केविएटर को डायरेक्शन देता है कि ये एक कॉपी तुम एप्लीकेंट को डिलीवरी कर दो. क्योंकि मान लो आई एम द एप्लीकेंट एंड आई एम प्रिपेयरिंग द अपील. I went to an advocate who is practicing in an appellate court and I have said that मुझे अपील करना है, मेरा अगेंस्ट में ये डिक्री आया है, I have to file an appeal. तो मान लो अचानक जब आप डिस्कस कर रहे थे अपील के बारे में, 2 दिन बाद एक कैविएट का नोटिस आ गया. कैविएट का नोटिस आके जो एप्लीकेंट अभी केस में बनेगा वो आके एडवोकेट, देयर इज अ कैविएट. व्हाट डज इट मीन? द एडवोकेट ऑफ दैट एप्लीकेंट विल से, देखो इतना चालाक आदमी है, इन्होंने एक कैविएट फाइल कर दिया, इसका मतलब जो भी अभी तुम स्टेप्स लोगे उसको पहले इंटीमेशन करना होगा, तभी तुम ले सकते हो. कोर्ट बिना उससे कुछ ऑर्डर डिक्री पास, कुछ ऑर्डर जजमेंट, और नॉट डिक्रीज फॉर लोअर कोर्ट, ऑर्डर जजमेंट पास नहीं कर सकता है. सो वेयर आफ्टर अ कैविएट हैज बीन लॉज्ड एनी एप्लीकेशन फाइल्ड in any suit or proceeding, the court shall serve a notice of the application on the caveator. तो caveat आई मान लो सपोज सर ये caveat एप्लीकेशन का टर्म कितना होता है? 90 दिन, 90 डेज इसका लिमिटेशन पीरियड रहता है. एक caveat का वैलिडिटी 90 दिन है. तो मान लो 1/7/2008 में मैंने caveat लॉन्च किया, 1/6/2008 में एक डिक्री पास किया था. अभी मैं 31 मान लो 31/6/2008 में डिक्री दिया था और उसके नेक्स्ट दिन में जाके कैविएट फाइल कर दिया कोर्ट में. कितना चालाक देखो. तो इसका वैलिडिटी कितना दिन रहेगा? 1/2/7/2008, 3/7/2008, 2/8/2008, 3/9/2008 ये रहेगा. तो 7, 8, 9 3 महीने गया है. तो 90 डेज इज द वैलिडिटी. इस तीनों महीने का अंदर मान लो डिफेंडेंट कुछ भी एप्लीकेशन करता है कोई भी कोर्ट में, मान लो ये तो अपील करेगा 100%, तो मान लो अपील किया है, तो अपील करने का आगे ये कैविएटर को पहले इंटीमेट करना पड़ेगा दैट आई एम गोइंग टू फाइल एन अपील. और मान लो अपील फाइल किया, जब भी अपील फाइल करेगा कोर्ट अपीलेंट का नॉलेज में ला देगा क्या? देखो कैविएटर ने कैविएट फाइल किया, उसको भी एक कॉपी सर्व करो, आपका अपील का कॉपी सर्व करो. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैविएट एंड द लिमिटेशन पीरियड इज 90 डेज. Within 90 days whatever application is filed by the applicant should serve a copy of the notice to the caveator. और कैविएट फाइल करने का टाइम, कैविएट का भी एक नोटिस एप्लीकेंट को जाना है, नहीं तो एप्लीकेंट को मालूम ही नहीं आएगा कि कैविएटर कैविएट फाइल करके बैठा है. तो इट्स जस्ट एन इंटीमेशन फ्रॉम बोथ द साइड्स. इफ यू वांट टू गो प्रोसीड, मान लो ऐसा हो गया डिफेंडेंट का अगेंस्ट में डिक्री आया है और डिफेंडेंट उसके बाद कुछ नहीं किया है, तो उस कैविएटर का कोई मतलब उस कैविएट के लिए कोई वैल्यू नहीं रहेगा. 90 दिन एक्सपायर हो जाएगा, फिर से कैविएट फाइल करना है, क्योंकि 90 दिन का अंदर कोई भी मामला होता है फिर से अपील होता है. सो 90 दिन का अंदर मान लो फिर से कुछ मैटर अपील में गया, तो इन दैट केस द appellant has to provide an intimation to the caveator. 90 दिन का बाद सर फिर से एक फ्रेश कैविएट फाइल करना होगा, क्योंकि 90 दिन तक इसका एक्सपायरी डेट रहता है. 90 दिन हो जाएगा तो फिर से एक फ्रेश कैविएट उस कोर्ट में डाल दो. तुमको ऐसा मालूम हो गया क्या? डिफेंडेंट का अगेंस्ट में डिक्री आया है नंबर 1, और डिफेंडेंट का अभी एक ही रास्ता है, अपील में जाना है. डिफेंडेंट विल नाउ गो फॉर अपील. डिफेंडेंट और कोई नहीं जा सकते एपीलेट कोर्ट में, उस डिक्री के अगेंस्ट में अपील कर सकता है. तो आप एपीलेट कोर्ट में जाके कैविएट लॉन्च कर दो. इससे आपका ही फायदा हुआ क्या? कुछ भी
करेगा तो आपको पहले इंटीमेशंस करना होगा, इंटीमेशंस देगा आपको। बिना आपका इंटीमेशंस कोर्ट भी प्रोसीड नहीं करेगा, बिना आपका प्रेजेंस में कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगा। गॉट इट? सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैविएट सेक्शन 148A। थैंक यू।